Hello everyone, welcome to SwiftLearn, India's most sincere learning destination for classes 1 to 10. My name is Jagrat and here I am with the third part of this ongoing series, Time. For those of you who have not seen the previous video, I would request you to please see them and then come to this video. So those of you who are new to this channel, let me tell you about SwiftLearn. SwiftLearn provides 100% live interactive classes. Personalized attention is given to every student by having a batch limit of 6 students per batch, a dedicated acad mentor team that works on your progress and tracks it, and we cover whole syllabus based on the latest pattern of ICSE and CBSE. We provide you with a detailed progress report of a journey at SwiftLearn. We have the SATs so that you can rank yourself among the other students of SwiftLearn. Unlimited practice series so that your learning doesn't get hindered. Subjective assessment as well to get and feedback regarding your answer writing skills. So those who have not already subscribed and pressed the bell notification, please do that so that you never miss a future update. So guys, I welcome you all to this third part of time, and today's topics are addition and subtraction of time. It's not like that when we are converting time, it's about like real time. Like you watched 3 hours of movie, then you studied, and then you watched again 2 hours of movie. So total time we are going to add. But in case of hours, it is quite easy. 3 hours movie, then 2 hours play, so it's 5 hours. But when it comes in the form of like different hour zone, like 13 hour and 60 seconds and all, so then it becomes difficult. And then we will are going to prepare how to prepare a timetable, like just like your school, your timetable we are going to prepare, and then we'll move on to some NCERT questions, or I'm sorry, ICE books questions and other questions, additional questions. So addition and subtraction of time. So how do you think that how will you be adding it? So guys, हमेशा time आपको इस तरह से दिया होता है ना, 6, 20, 7, 50. So that's why we are having two columns, hours and minutes. हमेशा time hours और minutes में होता है, right? So arrange the like table hours and minutes and then add them separately as you do for a normal number. But the trick here is if some of the minutes or seconds go above 60, बेटा आपको 60 से ऊपर कोई भी नंबर यहाँ नहीं दिखना चाहिए, इनफैक्ट 60 भी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि बेटा 60 जब पहुंचा तो दैट मीन्स इट बिकेम 1 मिनट. Like if you are adding seconds and you got a 60, that means it is transferred to seconds, right? Similarly, it happens with the hours and all, right? If you're adding minutes and it became 60 minutes, so that means it became 1 hour. So that thing you have to be careful about. Similarly, if you take a carry, so beta, if आप यहाँ पर 7 hours है, ठीक है, यहाँ पर minutes है, आप hour से carry ले रहे हो, तो वो hour ही तो देगा, वो minute थोड़ी ना देगा. तो वो 7 hours जब 1 carry दे रहा है, so it will become 6 hours. एंड जो 1 आवर है यहाँ पर 60 सेकेंड मिनट्स बन जाएगा या सेकेंड्स बन जाएगा, जो भी आप बनाना चाह रहे थे, राइट? सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट टेकिंग कैरी एंड वाइल एडिंग यू हैव टू ऑल्सो सी कि क्या बन रहा है. आई नो आप लोग कंफ्यूज हो गए, तो अभी हम कुछ रियल टाइम क्वेश्चंस करते हैं जिसके थ्रू आपको ये काफ़ी ईजिली समझ में आ जाएगा. ओके देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ईजी सा क्वेश्चन लेते हैं, पहला ज़्यादा कॉम्प्लिकेट सा नहीं लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन तो 15 आवर्स 12 मिनट्स 11 आवर्स 25 मिनट्स. तो आवर को आवर के नीचे, मिनट्स को मिनट्स के नीचे, सिंपल एडिशन जैसे करते हो, ठीक है. 2 + 5 7, 1 + 2 3, 5 + 1 6, 1 + 1 2, हो गया. टोटल टाइम आ गया आपका 26 37, बात खत्म. ओके, एंड ऑफ डिस्कशन. बट नाउ लेट्स टेक अ ट्रिकियर क्वेश्चन इन वेयर you are supposed to add 14 minutes and 40 seconds and 23 minutes and 34 seconds. ये भी इजी है. देखो, अब देखो आपने क्या किया, जब आपने 40 और 34 को ऐड किया, सो आपको क्या मिला, 40 और 34 को ऐड करके 74 मिल गया. एंड व्हाट आई सेड, नो नंबर शुड गो अबव 60, क्योंकि अगर 60 आ गया दैट मीन्स इट्स 1 मिनट. सो आप 74 में से 60 माइनस करोगे. क्यों माइनस करोगे, क्योंकि 74 सेकेंड्स है, लेकिन 60 सेकेंड्स का तो 1 मिनट हो जाता है, एंड वी आर हैविंग अ सेपरेट कॉलम फ्रॉम मिनट. तो ये जो आपने 60 माइनस किया ये 1 मिनट बन जाएगा, जो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा. ओके, एंड ये आप जब माइनस करोगे तो 14 सेकेंड्स विल बी रिमेनिंग विद यू, एंड ये देखो ये 1 मिनट्स की तरह ट्रांसफर हो गया. ये जो आपने 60 माइनस किया है यहाँ पे, ये यहाँ ट्रांसफर हो गया एज मिनट. ठीक है, आपको यही बात एक केयरफुल रहना है जब आप करते हो. सो नाउ लेट अस सी, अ ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 10:40 AM. इट टेक्स 6 hours and 10 minutes. तो बेटा आप AM को आवर्स से थोड़ी ना ऐड कर दोगे,
तो पहले आपको इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, 24 आवर्स की क्लॉक में चेंज करना पड़ेगा, बट इट इज ईजी बिकॉज ये AM ही है. सो 10:40 AM को अगर आपको 24 आवर्स में चेंज करना है तो यहाँ से AM हटा दो, सीधे क्या लिख दो, आवर्स लिख दो. अगर PM होता तो कुछ चेंज आता. सो दैट्स वाई यू आर हैविंग हियर 10 and 40 आवर्स. ये AM वाला नहीं है, ये हमने आवर्स में चेंज कर दिया है. 10 hours and 40 minutes. Then we added 6 and 10 to it. So we got 16 and 50. But रेलवे क्लॉक में तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई पिक करने आ रहा है तो उसको क्या बोलोगे, 1650 पे आऊँगा, नहीं. अब आप इसे नॉर्मल आवर्स में चेंज करोगे तो कैसे चेंज होगा, 12 से ऊपर है सो सब्ट्रैक्ट बाय 12, सो यू विल गेट 4. सो यू विल टेल दैट पर्सन कि मुझे 4:50 पे PM पे पिक करने आना. अंडरस्टूड? सो now next question, we are supposed to add 12 years 10 months and 16 years and 8 months. So बेटा देखो 12 years और मंथ का अलग अलग कॉलम बना दिया. अब देखो बेटा एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 होते हैं ना, और यहाँ तो 18 आ गया, तो 18 मंथ्स मतलब एक साल और हो चुका है. सो दैट मीन्स यू विल ऐड वन मोर कॉलम टू इट एंड वन मोर कॉलम बनाओगे और 12 माइनस करोगे, है ना. जब और ये जो 12 है ये यहाँ 1 बन के ऐड हो गया, क्योंकि वो 12 मंथ्स का एक ईयर होता है, तो 18 क्यों बोलोगे, 12 माइनस 18 माइनस 12 यू विल गेट 6 मंथ एंड 1 इधर गिर दिया, 29 ईयर्स एंड 6 मंथ्स. आई होप बेटा आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो रही होंगी बातें, है ना. सो अब देखो, अब आपको सब्सट्रैक्शन देखना है, ठीक है. तो 23 आवर्स, तो जो बड़ा है उसको ऑफकोर्स ऊपर लिखोगे आप, तो ये 36 आपने ऊपर लिख दिया, सॉरी लेट्स टेक दिस करो, 36 आपने ऊपर ले दिया और 23 आपने नीचे लिख दिया, ठीक है. एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट. अब देखो बेटा 7 से 42 सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, आप एक कैरी लोगे यहाँ से. तो बेटा जब आप कैरी लोगे तो ये तो आवर है ना, 36 इज आवर, तो वो आपको एक आवर दे रहा है, लेकिन आप कौन से कॉलम में जंप कर रहे हो, मिनट्स के कॉलम में जंप कर रहे हो. तो ये 60 दे रहा है, टेक्निकली आपको 60 मिनट्स दे रहा है, क्योंकि आप मिनट्स के कॉलम में उस वक्त आपका कैरी 1 ही आया था, लेकिन वो 1 आवर था. जब वो मिनट्स के कॉलम में आया वो मिनट्स बन गया, 60 मिनट्स हो गए, तो इसीलिए आपका टोटल अब कितना है, 67 है. तो 67 से आप 42 माइनस कर रहे हो, 7 माइनस 2 5, 6 माइनस 4 2. सिमिलरली अब ये क्या रह गया, 35 रह गया, 35 माइनस 23, 5 माइनस 3 2 एंड 3 माइनस 2 1. समझ में आया बेटा. बस कैरी लेते हुए ध्यान रखना कि अगर आवर से मिनट में कैरी ले रहे हो 60 मिनट्स देगा. सिमिलरली फॉर अदर थिंग्स एज वेल. देखो अब देखो ईयर्स और मंथ है, जब ईयर से कैरी लोगे तो वो मंथ्स ही तो देगा. 27 से आपने कैरी मांगा तो उसने आपको दे दिया, कितना दे दिया, 12 मंथ्स दे दिया, क्योंकि आप मंथ्स के फॉर्म में मांग रहे हो ना कैरी. सो 12 मंथ्स सब्ट्रैक्टेड बाय 9, सो यू विल गेट 3. सिमिलरली 26, क्योंकि आपने 1 कैरी दे दिया है, एक साल कैरी दे दिया है, सो 26 ईयर्स यू आर हैविंग विद यू. 26 minus 14 you are having 12. So 12 years and 3 months is your answer when you are subtracting these two numbers. Understood beta? So now what was the time 3 hours 45 minutes before 2:20 PM? So बेटा मैंने आपको बताया है जब PM वाला क्वेश्चन होगा, जब से AM PM वाला, तो सबसे पहले उसको 24 आवर्स में चेंज करना है. So let's change it into 24 hours. So PM है, so you will add 12, so it will become 14. सो 1420 जो आया है वो आपका 220 का ही आंसर आया है, राइट. नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 3 hours and 45 minutes. सो 20 से 45 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, राइट. सो यू विल नीड अ कैरी, टेक अ कैरी हेयर. जब इससे एक ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, 13 बन जाएगा. एंड यू टुक 1 hour कैरी बट यू जम्प्ड टू मिनट्स, आप मिनट्स में गए. सो दिस 20 विल में क्या ऐड हो जाएगा, 60 मिनट्स ऐड हो जाएगा. जो आपने कैरी लिया ये वही वाला है, ठीक है. एंड दिस बिकेम 80. Now 80 minus 45 gives you 35 and 13 minus 3 gives you 10. So 10 hours and 35 minutes is your answer. Understood beta? Akash goes to school at 7:30 AM and returns at 2:40 PM. How long does Akash remain outside the school? ठीक है, आकाश जो है वो स्कूल जाता है इतने पे और रिटर्न आता है इतने पे, तो कितनी देर वो अपने घर से बाहर रहता है, दैट इज कितनी देर वो अपने स्कूल में रहता है. सो आपको 2:40 PM से ये माइनस करना है, लेकिन क्या मैंने AM और PM माइनस करना सिखाया, नहीं. आप इसे सबसे पहले किस में चेंज करोगे, आवर्स में चेंज करोगे, ओके.
सो लेट्स गो फॉर इट. सो सबसे पहले यू विल टेक 77th AM. सो AM को बेटा चूंकि चेंज करना आसान होता है इसलिए मैंने AM लिया है. AM में कुछ नहीं करना होता है, सीधे हटा दो AM को. सो यू विल गेट आवर. HRS मीन्स आवर्स का शॉर्ट फॉर्म. PM में आपको 12 ऐड करना पड़ता है. सो 12 + 2 विल बी 14. 1400 आवर्स. PM हट चुका है, आवर्स आ गया. सो नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1440 - 730. 40 - 3 कैरी लेने की जरूरत नहीं है. 40 - 30 10. 14 - 7 7. So 7 hours 10 minutes is your answer. Understood beta? Now let's move on to the next thing that I promised you, that is how to make a timetable. So beta you must have seen your school timetable. Left hand side पे days होते हैं and then you have your subjects and time. So why does it timetable need it? Timetable help us to organize our day. ऐसे आप स्कूल में इधर उधर घूमते रहोगे आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सी क्लास कब स्टार्ट हो रही है, राइट? बट हियर बिकॉज ऑफ योर टाइम टेबल यू नो कि मेरा इतने बजे ये क्लास है, इतने बजे ये क्लास है. दैट्स वाई टाइम टेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम टेबल्स आप घर में भी बना सकते हो कि मम्मा इतनी देर से इतनी देर तक मैं पढ़ूंगा एंड इतनी देर से इतनी देर तक मैं खेलूंगा. ठीक है. रेलवे जो है, इंडियन रेलवे, वो अपना टाइम बनाती है कि कौन सी ट्रेन कितने बजे जाएगी, कौन सी बस कितने बजे जाएगी, ये बस स्टैंड में होता है. एंड इन एयरपोर्ट ऑल्सो वी आर हैविंग फ्लाइट शेड्यूल्स कि कौन सी फ्लाइट कितने बजे जाएगी एंड कौन सी फ्लाइट कितने बजे आएगी, राइट? सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपना टाइम टेबल बनाओ अपने डे का, कि आप सुबह सुबह क्या करते हो. मैं इतने बजे से इतने बजे तक स्कूल जाऊंगा, इतने बजे से इतने बजे तक सोऊंगा, देन आई विल प्ले एंड देन आई विल स्टडी. सो बनाओ एंड लेट्स सी कि कौन कितना अच्छा टाइम टेबल बनाता है. ओके, सो लेट्स हैव सम क्वेश्चंस. मैं आप लोगों के लिए कुछ और क्वेश्चंस लाया हूँ आज. ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है? मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू पॉज द वीडियो एंड देन कम बैक टू सी द सॉल्यूशंस. ओके, मैं अभी आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि कैसे कैसे ये होंगे. सो बेटा वीक्स को डेज में कन्वर्ट करना है. सो इन 1 वीक हाउ मेनी डेज आते हैं? 7 days एंड दैट इज स्मॉलर. बड़े से छोटा जाना है तो दैट मीन्स यू विल मल्टीप्लाई. सो फॉर दिस क्वेश्चन 12 × 7 ये आपको आपका क्या दे देगा? डेज दे देगा. एंड प्लस 4 days. इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर. पूरा स्पून फीडिंग में नहीं करूंगा कि पूरा का पूरा आप लोग को आंसर दे रहा हूँ. थोड़ी मेहनत आप लोग भी करो, मूवी नहीं देख रहे हो. ओपन योर कॉपी एंड पेन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस कंप्लीटली. ओके, and you can write the answers in the chat box, like in the comment box, and everyone should write it. ये मत सोचो मेरा गलत हो जाएगा. लिखो तो जो नीचे वाला पर्सन कमेंट करेगा so that you can compare. Okay, so 7 weeks into hours. एक वीक में डेज होते हैं देन आवर्स होते हैं, है ना? सो ये 2 स्टेप क्वेश्चन है. पहले आपको 7 वीक्स को डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो इन 1 वीक हाउ मेनी डेज आर देयर? 7 days आर देयर. सो गाइस 7 वीक्स को 7 पहले डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो डेज में आप आ गए. अब 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं. किसमें? 1 डे में. सो नाउ यू आर हैविंग डेज. सो 7 × 7 इज 49 days. 49 days आप आ चुके हो. अब आपको आवर्स में जाना है. तो 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 49 × 24. अब ये आपको क्वेश्चन आपको किस में मिलेगा? आवर्स में मिलेगा. आप सीधे जंप नहीं कर सकते थे आवर्स में. पहले वीक से डेज आना था, फिर डेज से आवर्स जाना था. ओके बेटा, आई होप क्लियर हो रहा होगा. सो 5 days into आवर्स. डेज से आवर्स में आ सकते हो, ठीक है? क्योंकि 1 days में हाउ मेनी आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं. सो 5 days into आवर्स. सो 5 × 24. दिस विल गिव योर आंसर. ओके, दिस विल गिव योर आंसर. ठीक है. और आप लोग स्कूल में HRS मत लिख के आना, ठीक है? ये मेरा शॉर्ट फॉर्म है, आपके और मेरे बीच का सीक्रेट है. अभी स्कूल में मत लिखना है. स्कूल में पूरी आवर की स्पेलिंग लिखना है HOUR. ओके, और आज. ओके, सो 8 days 12 days 8 hours into आवर्स. आपको 12 days 8 hours को आवर्स में चेंज करना है. सो कैसे करोगे? सो बेटा डेज को आवर्स में कर सकते हैं ना. सो 12 × 24. This will give you your hours, right? And then you are having 8 hours extra. So ये आप जब multiply करोगे you will get your answer and then you will add 8 to it. So this will give you your complete answer. Okay बेटा? Now let's convert 1 day into second. Day से क्या डायरेक्ट सेकेंड पे जंप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. इसके बीच में एक और चीज आती है जो कि क्या होती है? आवर्स होती है. सो बेटा in 1 day how many hours are there? 24 hours are there. Now you can convert. Okay,
आवर्स, 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 1 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 24 आवर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू मिनट्स, तो 24 × 60. अब आप पहुंच गए हो कहाँ, मिनट्स में. इसके बाद अब जाओगे किसमें, सेकेंड्स में. सो 24 × 60 तो ये मिनट्स हो गया. अब इसको भी आवर में कन्वर्ट करना है. सो 24 × 60 × 60. जब आप ये 3 मल्टीप्लाई कर लोगे देन यू विल गेट द सेकेंड्स. थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी टफ होगी, बट या यू कैन हैंडल इट. 24 × 60 करोगे पहले, जो आंसर आएगा देन अगेन यू विल मल्टीप्लाई इट विद 60 टू गेट द आंसर. समझ नहीं आया, देखो 1 डे से आवर में गए, सो 24 आवर्स हो गए. आवर से मिनट में गए, सो 24 × 60 मिनट्स आ गया. देन मिनट से सेकेंड्स में गए, सो 24 × 60 × 60. ओके, सो 1 वीक इंटू सेकेंड्स, वीक से सेकेंड्स में तो जा ही नहीं सकते, है ना. सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां से करते हैं. 1 वीक से किस में आओगे, डेज में आओगे. सो 1 वीक कितना हो गया, 7 डेज हो गया. डेज से आप आवर में जाओगे, सो 7 × 24. अब आप किस में पहुंच चुके हो, आवर्स में पहुंच चुके हो. ठीक है, फिर इसके बाद आपको जाना है मिनट्स में. सो 7 × 24 × 60. ओके, अब आप कहाँ पहुंच चुके हो, मिनट्स में पहुंच चुके हो. नाउ यू हैव टू गो टू सेकेंड्स. सो 7 × 24 आवर्स एंड देन इंटू 60 मिनट्स एंड देन अगेन 60 फॉर सेकेंड्स. ये जो लास्ट वाला 60 आया ये सेकेंड्स पे कन्वर्ट करने के लिए. ओके, टफ था ना. चलो एक बार रिपीट करते हैं. 1 वीक को डेज में कन्वर्ट किया तो 7 डेज हो गए. 7 डेज को आवर्स में कन्वर्ट किया तो 7 × 24. फिर आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 7 × 24 तो आवर्स दे रहा था, आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए एक 60 मल्टीप्लाई कर दिया. देन मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए एक और 60 आ गया. ओके, क्लियर बेटा. नाउ 1 month into seconds. Oh my god, how shall we do it? ओके, चलो देखते हैं. अब तो आप लोग बहुत स्मार्ट हो, आप लोग खुद ही मुझे गाइड कर दोगे. चलो बताओ, 1 month है. 1 month से पहले एक यूनिट छोटे में आओ, डेज में आओ. सो 1 month इज इक्वल टू 30 डेज ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे. 30 डेज ले लेते हैं. अब डेज से किस में आओगे, आवर्स में आओगे. सो 30, एक डे में कितने आवर्स होते हैं, 24. तो 30 डेज में कितने आवर होंगे, 30 × 24 आवर्स. देन आवर्स से मिनट में आओ. सो 30 × 24, ये तो आवर्स दे रहा था, अब मिनट में आना है तो मल्टीप्लाई बाय 60. करेक्ट, यहाँ पर आपका मिनट आ गया. नाउ अब आपको जाना है सेकेंड्स में. तो 30 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60, ये तो हमें मिनट्स दे रहा था तो एक 60 आप और मल्टीप्लाई करोगे. दिस विल गिव यू योर सेकेंड्स. क्लियर हो रहा है बेटा. पहले 30 को 24 से करना, यू विल गेट अ नंबर, देन मल्टीप्लाई इट बाय 60, यू विल गेट अ थर्ड नंबर, देन मल्टीप्लाई इट बाय 60 अगेन. दैट विल बी योर फाइनल आंसर. आंसर काफी बड़े बड़े आ रहे होंगे, सो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आप इनको यहाँ तक कर रहे हो. ओके, नाउ यू आर ऑल ग्रोन अप्स. ओके, अब देखो वीक्स है, डेज है एंड सेकेंड्स में जाना है, तो एक एक करके आपको करना पड़ेगा. पहले 2 वीक्स को सॉल्व कर लेते हैं. फर्स्ट वी विल सॉल्व 2 वीक्स. 2 वीक्स को पहले सेकेंड्स में लेके आते हैं. सो 2 वीक्स को अगर जब आप सेकेंड्स में लेके आओगे, सो वीक्स टू डेज लाओ पहले. 2 × 7, ये आप किस में आ गए हो, डेज में आ गए हो. इसको सीधे 14 लिख दूंगा मैं. 14 डेज में हूँ मैं, एंड देन 24 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं किस में आ जाऊंगा, आवर्स में आ जाऊंगा, है ना. और जब आवर्स से आप मिनट्स में जाना है, सो आई विल हैव 160, एक 60, 160 नहीं, ठीक है, मिनट्स में आ गए. और मिनट्स से आप सेकेंड्स में जाना है, सो 14 × 24 × 60 × 60. ये आपका 2 वीक्स का हिसाब किताब है. यहां से आपको एक नंबर मिलेगा जिसमें आपको 2 वीक्स में कितने सेकेंड्स होते हैं ये मिल जाएगा. देन आपको 3 डेज के लिए निकालना पड़ेगा, फिर दोनों नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा. 3 डेज वाला इजी है, डेज से किस में आना है, आवर्स में. सो 3 × 24 एंड देन आवर्स से बेटा अब तो कितनी बार बता चुका हूँ, डायरेक्टली लिख दूँ. 3 × 24, फिर एक 60 मिनट्स के लिए, फिर एक और 60 सेकेंड्स के लिए. सो अब आप सेकेंड्स में आ चुके हो. सो उसको लिखोगे, फिर इसको लिखोगे, दोनों को सॉल्व करोगे एंड ऐड करोगे, तब आपको आपका फाइनल आंसर मिलेगा. ओके, आई होप आप लोगों को लास्ट की स्लाइड ज़्यादा बोरिंग नहीं लग रही होंगी, क्योंकि क्वेश्चंस आपको करने हैं. ओके, सो लेट्स रिप्लेस 24 आवर्स. अब इनको डेज में कन्वर्ट करना है, तो बेटा आवर्स से डेज में आना है. सो व्हाट शैल वी डू, वी विल डिवाइड. सो 107 डिवाइड बाय 24. सॉल्व इट एंड यू विल गेट योर आंसर.
नाउ 102 मिनट्स इंटू आवर्स एंड मिनट्स, तो आप खाली आवर्स में चेंज करने का सोचो, जो मिनट्स होंगे वो रिमाइंडर से आ ही जाएंगे. सो अगर आप 24 इंटू आवर्स चेंज करना है ना बेटा, मिनट्स को आवर्स, आई एम सॉरी, एक मिनट में कितने, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 होते हैं. सो 60 डिवाइडेड बाय 1024, दिस विल गिव योर आंसर. जो आपका क्वोशंट आएगा वो आपके आवर्स होंगे, जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आपके मिनट्स होंगे. 60 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं. 86 मंथ्स इंटू ईयर, सो बेटा एक ईयर में ऑलरेडी कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं. आपके पास 86 है, सो यू विल डिवाइड इट बाय 12. तो जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वो आपके ईयर्स होंगे, और जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो आपके मंथ्स होंगे. आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को. बेटा जिसको क्लियर नहीं हो रहा है प्लीज पेन एंड कॉपी लेके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो पहले, फिर मेरा सॉल्यूशन और हिंट सुनो. सॉल्यूशन तो क्या है, हिंट. तब मेरा हिंट सुनो, तब आपको समझ में आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ. पहले खुद सॉल्व करो. फिर 16 आवर्स 400 सेकेंड्स को मिनट्स में करना है. सो 16 आवर्स को मिनट्स में करना है तो 16 मल्टीप्लाई 60, क्योंकि एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं. एंड 400 सेकेंड्स को मिनट्स में करना है तो डिवाइड, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. सो सेकेंड्स ज़्यादा दिख रहे हैं अभी, तो हम बड़े से बड़े, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, सो वी विल डिवाइड. तो इन दोनों को जब आप साथ में लिखोगे यू विल गेट योर आंसर. मिनट्स में आपको आ जाएगा, ये भी मिनट्स में आएगा, ये भी मिनट्स में आएगा. सिमिलरली ये वाला आवर्स में करना है. सो 2 डेज को जब आवर्स में करना है तो 2 मल्टीप्लाई 24. बट बेटा मिनट्स को आवर्स में करना है तो 60 डिवाइडेड बाय 120. ये क्वेश्चन पिछली स्लाइड्स में भी थे लास्ट टाइम. जो जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको ये क्वेश्चन याद आ रहे होंगे, ये पिछली क्लास में भी थे क्वेश्चन. नाउ चेंज इनटू 12 आवर क्लॉक. 12 आवर क्लॉक में चेंज करना है. तो बेटा क्या रूल था, इफ स्मॉलर देन 12, सॉरी इफ, अच्छा 12 आवर्स में चेंज करना है. इफ ग्रेटर देन 12 सब्ट्रैक्ट बाय 12, इफ स्मॉलर देन 12 जस्ट ऐड अ AM. तो बेटा 24 आवर्स हैं, तो 24 आवर्स सब्ट्रैक्ट बाय 12, सो यू विल गेट 12. एंड क्योंकि 12 से बड़ा था दैट मीन्स इट्स अ मिडनाइट, रात की बात कर रहा है. 17 आवर्स 12 से बड़ा है, सो सब्ट्रैक्ट बाय 12, 17 माइनस 12, सो यू विल गेट 5. 12 क्योंकि 12 से बड़ा था दैट मीन्स किसकी बात कर रहा है, PM की बात कर रहा है. और यहाँ बेटा मिडनाइट इसलिए लिखा है, कहने को आप इसको PM बोल सकते हो बट बोलते नहीं है कॉमन लैंग्वेज में, मिडनाइट बोलते हैं और नून बोलते हैं. उसके बाद 3 आवर्स, देखो 12 से छोटा है दैट मीन्स यू विल राइट इट एज इट इज, और उसके आगे आप क्या लिख दोगे, AM लिख दोगे, राइट. एंड देन 18 आवर्स एंड 45, like 18 hours and 45 minutes, so subtract by 12 you will get 6, and then 45 PM आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है बेटा, मेकिंग सेंस. नाउ चेंज इनटू 24 आवर क्लॉक. तो जो PM होगा ऐड 12 इस वाले के लिए, एंड AM होगा तो रिमूव AM एंड राइट आवर्स. सो PM है ऐड 12, सो यू विल गेट 1640 PM. PM again at 12, so you will get 1545. मैंने PM सही लिखा है, नहीं लिखा है, क्योंकि जब हमने चेंज कर दिया तो PM का रूल खत्म हो जाएगा. you will get hours. फिर उसके बाद AM है, तो just drop the AM and write hours. जब आपको टाइम एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होगा तब भी you will always use this thing. AM और PM में टाइम दिया है तो सबसे पहले उसको किस में चेंज करो, आवर्स में चेंज करो, then you can do the addition or subtraction. Okay, so guys this is the addition and subtraction for you. So ये आप लोग करो. Okay, so क्या बताया था, ये एक मैं करके दिखा दे रहा हूँ दोनों का. आवर्स और मिनट्स को अलग अलग लिखो पहले तो. 6 आवर्स को अलग लिख दिया, 20 मिनट्स को अलग लिख दिया. आप लोग बॉक्स बना के कर सकते हो जैसा हमने सिखाया था आपको. 5 आवर्स कर दिया एंड 37 मिनट्स कर दिया. सो 6 + 5 11 आवर्स हो जाएगा, एंड यहाँ पर 20 और 37 है तो 7 और 5 57 मिनट्स हो जाएगा. ओके, सिमिलरली आप नीचे वाले के लिए एडिशन कर सकते हो. ठीक है, ट्राई करो खुद. और आपको बताया जब भी टोटल 60 से ऊपर जाए देन व्हाट यू विल डू, यू विल व्हाट, 60 से ऊपर जाएगा टोटल तो पहले 60 सब्ट्रैक्ट करना. और जैसे ये देखो मिनट्स और आवर में है, अगर मिनट्स में है तो एक 60 इधर जंप करा दो तो ये आवर्स बन जाएगा. ठीक है, जिसको याद नहीं आ रहा है प्लीज गो टू द बैक स्लाइड एंड सी मैंने उसको कैसे कर रखा है. 3 आवर्स फ्रॉम 12 आवर्स फ्रॉम 3 डेज. क्या डेज से आवर को माइनस कर सकते हो, नहीं कर सकते, यूनिट सेम होनी चाहिए. तो पहले डेज को किस में चेंज करोगे, हाँ यू विल चेंज इट इनटू आवर्स. सो 3 × 24 जब आप करोगे सो यू विल गेट
72 आवर्स. अब आप माइनस कर लो 72 minus 12, यू विल गेट योर आंसर. ओके, कभी कभी स्मार्ट वर्क भी करना होता है. सो वीक्स एंड डेज तो ये तो काफ़ी ईजी है सॉल्व करना. 8 से 5 माइनस करोगे यू विल गेट. अच्छा ये वाला मैं करके दिखा देता हूँ एक, ताकि आप लोग एक सेकेंड देखो. तो बेटा यहाँ पर मैंने वीक्स लिख दिए हैं और यहाँ पर मैंने डेज लिख दिए हैं. वीक्स है 8 और यहाँ है 5. यहाँ वीक्स है 9 नहीं 6 और यहाँ है 9. तो बेटा 6 से 9 माइनस नहीं कर सकते ना, मुझे एक कैरी लेना पड़ेगा, राइट. तो बेटा कैरी तो मैं एक ही लूँगा, लेकिन वो वीक है. तो वीक जब मुझे कैरी देगा तो वो क्या बन जाएगा, 7 डेज बन जाएगा. तो 6 + 7 हो जाएगा. सो 6 + 7 विल बी वॉट, 13. 13 - 9 विल बी 4. और एक आपने कैरी दे दिया है तो ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा. So 2 weeks and 4 days is your answer for this one. So 6, 12, 13, 13 minus 9. So yeah, 6 week, sorry 2 weeks and 4 days. बेटा आपने वीक से 1 ही कैरी लिया है, लेकिन 1 वीक डेज में जा रहा है, तो वो डेज में 7 डेज हो जाता है, इसलिए 6 में ऐड हो रहा है. 6 + 7 हो जा रहा है, तो इट बिकम्स 13. तो आप 13 से माइनस कर रहे हो इस 9 को. ओके, जिसको ये अभी नहीं समझ में आया प्लीज गो बैक टू द स्लाइड. हमने इनिशियल स्लाइड में इसको डिस्कस किया है, ठीक है. फिर आप दोबारा के क्वेश्चंस को करो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे. ये बिफोर वाला भी क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया है. व्हाट इज 2 hours and 30 minutes बिफोर. तो बेटा देखो ये पीएम में है, तो पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. पीएम है तो एट 12, 12 + 9 विल बी 23, राइट. 12 + 9 21. 12 + 9 is 21. 21 13 आवर्स हो गया. अब आप ऐड कर सकते हो ना, बिफोर यू हैव टू माइनस 21 13 माइनस 2 13. ठीक है, सो 13 13 तो पूरा 0 हो जाएगा. 21 - 2 19 हो जाएगा. तो 19 आवर्स इज योर आंसर. आप चाहो तो इसे पीएम में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है. नाउ व्हाट इज द टाइम फॉर 5 hours बिफोर 7:18 PM. सो बेटा 7:18 PM है, तो पहले तो उसको 12 से ऐड करो. तो 7 + 12 विल बी 19.8 आवर्स हो गया. अब इसको 5 hours से आप माइनस कर सकते हो. सो यू विल ऐड अ 0, यू विल गेट. सो 18 8 - 0 8, 1 - 0 1, and then 9 - 5 is 4. So you will get 14.18. Understood बेटा. Now find the interval between. आपको इनका इंटरवल निकालना है, इस बीच में कितना गैप है. So that means you need to subtract, है ना. सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है ना. तो कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट बेटा बताओ. क्या पीएम और एएम को मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ. मुझे पहले इन दोनों को आवर्स में चेंज करना पड़ेगा. तो ये पीएम है तो ये बन जाएगा 16 आवर्स, और ये एएम है तो ये तो यही रहेगा 19 आवर्स. ठीक है, अब देखते हैं इनको माइनस करना. सो बेटा सी, जो इंटरवल निकाला तो ये बड़ा था ना, तो यहाँ आ जाएगा 1600. ठीक है, आप लोग बॉक्स बना के करना, आप लोग ऐसे मत करना. सो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा. अब देखो बेटा, मैं दूसरे कलर से कर रहा हूँ ताकि आप लोग को पता चले. मैंने 16 से 1 कैरी लिया. क्या लिया? 1 कैरी लिया. लेकिन ये 16 क्या था? आवर था, और मैं मिनट साइड पे जंप किया है, तो अब ये 60 मिनट्स हो जाएगा. सो 10 - 5 is 5 and 6 - 1 is 5, 55. और 1 आपने कैरी दे दिया था, तो ये आपके पास क्या बचा था? 15 बचा था. 15 - 9 विल बी 6. सो 655 आवर्स इज योर आंसर. ये आवर्स को अब आपको चेंज करना है किसमें, एएम या पीएम में. तो 6 है स्मॉलर देन 12, दैट मीन्स 6:55 AM इज योर आंसर. ठीक है, अब बाकी आप करो खुद. ठीक है, कैरी देना भी सिखा दिया है. ये वाले क्वेश्चन आप लोग खुद करो एंड राइट द आंसर्स इन द चैट. जिनको अच्छा लगा वीडियो प्लीज़ लीव अ लाइक एंड अ कमेंट, एंड प्लीज़ अगर कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज़ उसे भी चैट में छोड़िए. आई डू रीड देम एंड आई ऑलवेज गेट मोटिवेटेड फ्रॉम देम. So these are the things that I have covered today. Addition, subtraction of time, that is very very important topic for you guys, and how to prepare a timetable. Okay, so thank you guys, thank you for all your love and support on my previous videos. ऐसे ही और ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स एंड लाइक करना, ताकि मैं अगली वीडियो अगली सीरीज़ बहुत जल्दी लाऊँ. जिन लोगों ने सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया है,
प्लीज़ डू दैट, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बाकी टीचर्स भी लाते रहते हैं ताकि आपकी बाकी सब्जेक्ट्स की भी तैयारी बहुत अच्छे से होती रहे. ओके, सो बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम.